I started the recording. I hope मेरी आवाज़ clear है and I hope that you can. I'm going to share my screen just now. The screen is shared. Yes, I can see the screen. Yes. So what I want to do is based on the questions that I have been getting about implementing the project. मैंने एक example create किया. It's a very minimal example. It does not do anything very useful, but इसका मकसद ये है कि आपको demo कर दे कि with everything that we have covered in the course, you should be able to come up with an implementation of your project जो कि बस basically चल जाती है. हमने क्योंकि बेसिक टेक्निक्स कवर की हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू कम अप विद अ स्केलेबल ऐप जिसके ऊपर आप बहुत सारे यूजर्स को मैनेज कर सको, बट बेसिकली prototype of your game or your whatever app that you're making, that is completely doable. That is completely doable, and then we are going to move forward from there and see कि किस जगह से इसको थोड़ा बेहतर तरीके से एनहांस किया जाता है. बट अगेन जस्ट टू शो यू कि जो आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन कवर्ड इन द कोर्स, और एनहांसमेंट्स आर द वंस that you can add on to claim extra credit or any um, so we're going to do a complete project that shows the user interaction requirements that you have for your project. So I'm going to do a project app that you're going to see, जिसके through you're going to see that all of the project requirements that have been given to you वो course के content के through से cover हो जाएंगी. Just the things that we are not that we have not covered in course that but would be good to have is के अगेन जो टेक्निक्स हमने इस्तेमाल किए हैं या जो हम अभी इस्तेमाल करने लगे हैं सोल्यूशन के अंदर, दिस इज़ नॉट गोइंग टू मेक एन एफिशिएंट सोल्यूशन, जिसका मतलब है कि यू कैन यूज़ इट फॉर अ फ्यू यूजर्स, लेकिन जब आप इसको रियल ऐप की तरफ लेके जाने शुरू होगे तो यू देन इट इज़ गोइंग टू कॉज इश्यूज, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स के साथ इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट एफिशिएंटली. बट लेकिन अभी जो हमने किया हुआ है, यू विल बी एबल टू गेट योर ऐप अप एंड रनिंग. और अगर आपने इसको बेहतर डिज़ाइन करना है, इसके ऊपर स्केलिंग इनेबल करनी है सो दैट यू आर एबल टू गेट इट टू वर्क फॉर a large number of users, तो you can explore APIs and frameworks. APIs बेसिक सम APIs से आपका काम हो जाएगा, again because इतने ज़्यादा complex project requirement भी नहीं है. You can explore them and it will get you extra credit, but this is not a requirement. Again, everything that we've covered during our course is going to cover your project requirements. So what we are going to do today is a demo. उस डेमो के अंदर भी मैंने डेटा हैंडलिंग जो है वो शॉर्टकट तरीके से की हुई है कि आई हैव नॉट एक्चुअली मेड एन एसक्यूएल डेटाबेस. आई हैव जस्ट पुट माय डेटा इनटू अ टेक्स्ट फाइल जो कि जेसन डेटा की तरह फॉर्मेट हुआ हुआ है. You should not be doing that. You should be storing your database, your data as a proper database. आपको SQL के database में के अंदर डाला होगा. और if anybody wants to, they can do a MongoDB database. But और उसके अंदर से आप उठा के फिर JSON के अंदर encode करोगे. But that part we've seen, I think in the last lecture. So you know all of the bits and pieces separately in all of the lectures. And today उसका मैं कुछ part जो है I'm going to put together. The rest of it you are expected to put together yourself, but again इसके individual parts सारे के सारे lectures के अंदर cover हुए हुए हैं. Also, second important thing that you need to do in your project, but that has not been incorporated into the demo that I am doing today, is user handling. लेकिन user handling आप लोगों ने extensively cover कर ली हुई है when you were doing your PHP part of the course. So I am not handling it again here because इसके अंदर सेलेक्ट करके वो वाली चीज़ें डाली हैं दैट यू आई काइंड ऑफ फेल्ट दैट वो फिगर आउट नहीं हो रही थी कि वो किस तरीके से इस्तेमाल करनी है. सो आई एम गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दैट एंड यू शुड बी, अब कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए कि यू हैवंट डन समथिंग.
जो कि आपको प्रोजेक्ट के अंदर करना है। यू माइट हैव नॉट डन इट इन अ वेरी एलिगेंट वे, लेकिन वो वाली चीज़ें अचीवेबल certainly are going to be achievable. So do we have any other questions about? I think I will now have addressed all of your questions. लेकिन अगर कोई और क्वेश्चन हुए तो you can ask right now if you want, or you can ask at the end of the demo if you want. So maybe think about any other questions that you have. Project is going to be due on 10th Jan, on which we are going to have a viva, और आपका सबमिशन 10th Jan को ही मैं रखूँगी. We are going for our next class. We are going to have a quiz, which is going to be a written quiz जिसमें MCQ आ सकते हैं या फिर आपको कोड के snippets दिए जा सकते हैं जिसकी आपने आउटपुट बतानी है. It is going to cover content from lectures 18 to 22. And now I will go on to a demo that I was just describing earlier. So let me show you the app first. So this is my app. I've just made a basic app in which I've said कि यूज़र के मेरी एप्लीकेशन के अंदर कुछ पोस्ट्स पड़े हुए हैं, और उनके ऊपर द नंबर ऑफ लाइक्स दैट दोज पोस्ट्स हैव वो मैंने उसके ऊपर डाले हुए हैं. तो इट्स काइंड ऑफ इट्स मोस्ट ऑफ इट इज़ हार्ड कोडेड. एंड व्हाट आई हैव डन इज आई हैव मेड एन ऐप जिसको जब मैं लोड करती हूँ, so it's an HTML file with JavaScript in it. When I load this file, it is going to access the data from my server. सर्वर के डेटा से वो देखेगा पोस्ट्स कौन से पड़े हुए हैं, सर्वर के डेटा से वो देखेगा कि हर पोस्ट के ऊपर लाइक्स कितने आए हैं, और उस हिसाब से इट इज़ गोइंग टू ड्रॉ अप अ स्क्रीन दैट लुक्स लाइक दिस. उसने हर पोस्ट को डिस्प्ले किया है, उस हर पोस्ट के लाइक्स को डिस्प्ले किया है, और एक बटन डाला है जिसके थ्रू इफ़ आई क्लिक ऑन इट तो इट इज़ गोइंग टू पिक अप द लाइक जो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया. और अगर कोई और यूज़र्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट नाउ आई कैन मॉडल अ डिफरेंट यूज़र इन द सेम ब्राउज़र ऑन अ डिफरेंट टैब. पहले आप लोगों को जब हम PHP के अंदर यूज़र हैंडलिंग कर रहे थे तो डिफरेंट यूज़र के लिए मैं डिफरेंट ब्राउज़र के अंदर जाती थी. इधर क्योंकि मैंने प्रॉपर यूज़र हैंडलिंग नहीं की हुई, तो वी कैन एक्चुअली सी दिस इन द अदर टैब, और इवन इफ़ आई ओपन अ डिफरेंट ब्राउज़र यू विल बी एबल टू सी इट. लेकिन जब मैं इधर 17 है इसको मैं क्लिक करूँगी, आई एम ऑन द सेकेंड टैब नाउ, तो यहाँ पर भी ये 18 हो गया. और इफ़ आई क्लिक दिस ओवर हेयर तो यहाँ पर भी ये 12 हो गया, और ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली हुआ है. So how am I able to achieve this? इसके अंदर मैंने कोई एक्स्ट्रा API नहीं यूज़ की. It's everything that we've done in the class. So let's see कि इसको मैंने organize किस तरीके से किया हुआ है. So these are my 4 files जिसके अंदर मेरा सारा काम हुआ हुआ है. So this is my data file. I have a posts.json का टेक्स्ट फाइल जिसके अंदर डेटा इस टेक्स्ट पड़ा हुआ है फॉर्मेटेड इन जेसन फॉर्मेट. अगेन दिस वाज द पार्ट दैट आई वाज सीइंग कि असल में आप मोस्ट केसेस के अंदर इस तरह से नहीं स्टोर करते अपना डेटा. आइदर यू स्टोर इट इन एन RDBMS लाइक MySQL या इस तरह की किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे होते हो, या अगर आपने डायरेक्टली डेटा जेसन डेटा ही डालना है तो आप MongoDB या कुछ इस तरह की फैसिलिटी यूज़ कर रहे होते हो. यू डू नॉट एक्चुअली यूज़ अ डायरेक्ट टेक्स्ट फाइल टू हैंडल डेटा. इसको तो थोड़े से यूजर्स के ऊपर भी स्केल करने के अंदर यू आर गोइंग टू हैव इश्यूज, बट दिस इज़ फाइन फॉर दिस डेमो बिकॉज जो हम चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं दैट हैज़ बीन मिस्ड आउट सो फार इन द लेक्चर्स इज़ कि इस किस्म की इंटरेक्शन के एक यूज़र अगर यहाँ पर इंटरेक्ट करता है तो वो इंटरेक्शन दूसरे वाले यूज़र को भी फौरी तौर के ऊपर उसका रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले हो. सो वी हैव जस्ट काइंड ऑफ मिनिमाइज्ड आर डेटा रिप्रेजेंटेशन. लेकिन असल में अगर आपने इसको करना हो तो यूल जस्ट नीड टू ड्रॉप एन एक्चुअल डेटाबेस जिसके अंदर ये डेटा रखा होगा इंस्टेड ऑफ हैविंग जस्ट डम्प्ड इट इनटू अ टेक्स्ट फाइल. सो बेसिक सा जेसन का फॉर्मेट है. इट इज़ एन एरे. एरे के अंदर एक एलिमेंट जो है दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स अ पोस्ट. एरे यू कैन टेल बिकॉज इसकी शुरू और एंड के ऊपर आपको एरे के स्क्वायर ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं, एंड देन हर कंपोनेंट जो है वो आपको ऐसे नज़र आ रहा है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होल्ड हुआ हुआ. सो इट इज़ शोइंग यू दैट यू हैव एन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एक ID की प्रॉपर्टी है, कंटेंट की प्रॉपर्टी है, लाइक्स की प्रॉपर्टी है, और उसके अंदर आपने वैल्यूज़ डाले हुए हैं. एंड देन यू हैव मल्टीपल blocks like this representing some posts that have been made for your application. And और उनके साथ जो corresponding likes हैं. अपने
अपडेशन को हैंडल करने के लिए we've added this ID over here because we want to achieve this functionality कि जब एक जगह के ऊपर कोई क्लिक करे तो दूसरी जगह के ऊपर वो वाला क्लिक जो है वो अपडेट हो जाए. So what we have done to set this up is I have one HTML file जिसके अंदर मेरा बेसिक इंटरएक्टिविटी है. सो दिस इज़ माय मेन ऐप की फाइल. उसके बाद मेरे पास अब मैंने 2-3 चीज़ें इससे करनी है. तो इसका मकसद ये है कि एक तो जब ये लोड हो तो ये यहाँ से सारे के सारे पोस्ट का डेटा उठा के स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दे. सेकेंड थिंग इट नीड्स टू डू इज़ कि जब भी जो इसने पोस्ट का डेटा डिस्प्ले किया हुआ है, एवरी टाइम समबडी क्लिक्स अ बटन. सो एक तो उसने बटन भी हर पोस्ट के साथ लगाना है एंड इट हैज़ टू मेक श्योर दैट एवरी टाइम समबडी क्लिक्स अ बटन तो उस पोस्ट के लाइक्स जो हैं वो अपडेट हो जाएं और वो अक्रॉस ऑल यूजर्स हो जाएं. जिसका मतलब है यू डोंट हैव टू जस्ट शो इट ओवर हियर, you have to make sure that this information reaches your server so that the server can do whatever it wants to do with it. Is in our case what we're just doing is updating the text file. Again that is something inefficient, लेकिन हम क्योंकि हमने 3-4 पोस्ट डाले हुए हैं, it's not going to show up as a problem for us in this particular instance. और एक चीज़ इसने करनी है कि so print all of the posts that are in the database. सेट अप अ मैकेनिज्म ताकि अगर इधर कोई लाइक करे तो मैं अपने सर्वर को बता दूं कि ये वाला पोस्ट के ऊपर लाइक एक ऐड हुआ है. एंड सेट अप अ मैकेनिज्म सो दैट इट कीप्स चेकिंग द सर्वर टू सी कि किसी भी पोस्ट के ऊपर कोई और लाइक ऐड हुआ है या नहीं. एंड वी आर गोइंग टू डू इट एट आई थिंक स्क्रिप्ट के अंदर मैंने डाला हुआ है एट half second intervals. So I have done this, which is going to set my checking up for every half second. So it's going to keep checking. ये वाला मेरा again main script है and this is going to keep accessing the server to see कि किसी और यूज़र ने किसी और ने तो नहीं इसको क्लिक किया, किसी और के क्लिक करने की वजह से कोई लाइक्स अगर बढ़ गई हैं तो just pick the number up and insert it into the page. पेज रीलोड नहीं करना. इट इज़ वर्किंग लाइक अ फ्रंट एंड ऐप, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ एंड यू कैन सी जब मैं इसको क्लिक कर रही हूँ ना तो आपको बहुत स्मूथ किस्म की एक अपडेट नज़र आ रही है कि सिर्फ ये वाला पार्ट अपडेट हो रहा है. यू आर नॉट सीइंग द इंटायर पेज लोडिंग. सो वी आर सेइंग कि पेज इसी तरह से रहेगा. मैं अपने जावा स्क्रिप्ट से किसी किस्म की बैकएंड की फैसिलिटी को एक्सेस कर रही हूँ दैट इज सेंडिंग मी द इंफॉर्मेशन and I am inserting that information into that part of the page that needs the update. मैं पूरे के पूरे पेज को नहीं कुछ कर रही. So it's showing up as a very smooth interaction. So वो this is what my main page is supposed to do. अब इस main page की जो requirements हैं, जो उसने सर्वर से चीज़ें पूछनी हैं, उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक एक काम तो मैं कर रही हूँ कि डायरेक्ट डेटा उठा लेना. तो यहाँ पर आई डोंट नीड टू पुट इन अ स्ट्रिक्ट एनी स्क्रिप्ट टू हैंडल द एक्सेस ऑफ द डेटा बिकॉज पहले मैं कह रही हूँ कि पूरा का पूरा उठा के डेटा ही आप डंप कर दें. सेकेंड केस के अंदर आई एम सेइंग कि ये वाला सेकेंड केस है कि एवरी टाइम देयर इज अ क्लिक तो सर्वर को बता दें कि अपना टेक्स्ट फाइल जो है वो अपडेट कर लें. सो वी आर गोइंग टू अचीव दिस विद अ फाइल कॉल्ड update.php एंड देन जस्ट टू ऐड सम डाइवर्सिटी टू द वे दैट वी आर हैंडलिंग रिक्वेस्ट मैंने एक और वो PHP फाइल क्रिएट की है जो कि मेरा फ्रंट एंड जो है वो चेक अपवर्ड्स को इस्तेमाल को यूज़ करेगा रिपीटेडली को एक्सेस करेगा रिपीटेडली टू बेसिकली आस्क के चेक कर लें कि आपके सर्वर की साइड के ऊपर कोई अपवर्ड्स आए हैं या नहीं आए. So this is how it is going to work. Let me go through this from the JavaScript file. और फिर जिस जिस जगह के ऊपर हमें PHP फाइल की एक्सेस कॉल की होगी तो हम PHP फाइल के अंदर जंप करके चेक कर लेंगे क्या करना है. बट लेट्स बेसिकली सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ओवर हेयर. ऊपर तो कुछ CSS लिखी हुई है. CSS इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो आई एम गोइंग टू स्किप दैट. लेकिन आपका मेन पार्ट जो है कोड का दैट इज दिस बिट विच इज सेइंग कि एक डिवीजन बना दें जिसके अंदर मैंने सारे के सारे पोस्ट जो हैं वो फिट करने हैं. उसका आईडी इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट बिकॉज यू कैन गेस कि हम इस आईडी को इस्तेमाल करके इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एक्सेस करेंगे ताकि हम इसके अंदर का कंटेंट जो है वो रन टाइम के ऊपर अपडेट कर सके, चेंज कर सके, इंसर्ट कर सकते हैं. वट एवर आर रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू बी.
वो हम इसको रन टाइम के ऊपर करेंगे, हम इसको हार्ड कोड नहीं कर रहे। सो वी जस्ट मेड अ एम्प्टी div, एंड ये सारे के सारे फंक्शंस हैं। द ओनली थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, सो विल स्टार्ट आवर काइंड ऑफ लॉजिक फ्रॉम हेयर, कि शुरू में मैंने करना है कि सारे के सारे पोस्ट फेच करते हैं, एंड व्हेन आई फेच द पोस्ट आई विल सेट अप द मैकेनिज्म के क्लिक होने के ऊपर ये करना है। और दूसरी चीज़ है कि पोस्ट फेच होने के बाद मैं कह रही हूँ कि हर हाफ सेकंड के बाद चेक लाइक्स का एक फंक्शन है, उसको कॉल कर दें, ताकि अगर कहीं और से कोई अपडेट आई है तो आई एम एबल टू अपडेट एंड शो इट टू द यूज़र फॉर देयर पर्टिकुलर इंटरफेस दैट दे आर सीइंग। सो बिकॉज फेच पोस्ट पहले लिखा हुआ है, तो लेट्स गो टू द फेच पोस्ट function and see what is going on there. This is our fetch post. Reasonably simple है, इसके अंदर कुछ एक आध और functions call हो रहे हैं. So it's an asynchronous function, which means that, which is one of the, इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, that is one of the reasons कि आपके फ्रंट एंड की फंक्शनिंग जो थी वो इतनी स्मूथ थी कि वी आर बेसिकली सेइंग कि फेच पोस्ट को कॉल कर दो एंड देन कीप लाइक सीइंग व्हाट हैपेंस। वन अदर रीजन दैट इट वाज सो स्मूथ वाज कि वैसे ही आपके 4 पोस्ट थे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना था, बट दिस इज दैट इज द पॉइंट, और दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स वेयर यू शुड बी यूजिंग एन एसिंक्रोनस फंक्शन. सो वी आर सेइंग कि पोस्ट डॉट जेसन को एक्सेस करें and put whatever information that you're getting into this object that we're calling response over here. और उसके बाद जो भी आपके पास डेटा आएगा, so when we run this line, ये वाली फाइल आपकी एक्सेस होगी. ये सारी चीज़ें मैंने इस वक्त सर्वर के ऊपर रखी हुई हैं, so you can see, let me show you the server. इसको मैं रन ऐसे कर रही हूँ कि ये चारों फाइल्स मैंने जैम्प सर्वर के ऊपर डाल दी हैं. माई जैम्प सर्वर इज़ रनिंग. अब मैं इसको सर्वर के बगैर नहीं चला सकती, बिकॉज आई हैव सम थिंग्स ओवर हेयर दैट कैन ओनली फंक्शन फ्रॉम द सर्वर साइड. सो ये वाली चीज़ें मेरी वैसे भी चल जाती, लेकिन इन वाली फाइल्स के अंदर से PHP फाइल्स के ऊपर आपकी index.html के अंदर से PHP फाइल्स को कॉल्स जा रही हैं. सो वी नीड टू हैव अ सर्वर, प्रॉपर सर्वर सेटअप. So we're saying posts.json को access करो. So this is one of the points where you can make a decision कि जब मैंने call भेजनी है, do I want to make a direct data call and just get all of the data over, or do I want to call a script और an API ताकि वो मुझे किसी पर्टिकुलर तरीके से डेटा पार्स करके दे. यहाँ पर हम डायरेक्ट जेसन कॉल कर सकते हैं, बिकॉज इट्स 4 पोस्ट्स एंड आई कैन जस्ट गेट ऑल द डेटा. मकसद ही मेरा ये है कि जस्ट गेट ऑल ऑफ द डेटा एंड स्टिक इट इनटू द स्क्रीन. सो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर डेटा की फाइल को कॉल कर दिया, दैट इज सिटिंग ऑन माई सर्वर. आई हैव सेड कि जब मेरे पास डेटा आ जाएगा तो उसको जेसन की ऑब्जेक्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दें. सो फेच द डेटा, रिस्पॉन्स जब आ जाएगा तो इनकोड इट इनटू अ जेसन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, एंड देन डिस्प्ले पोस्ट को कॉल करें. तो दिस वी रिटन डाउन नीचे, डिस्प्ले पोस्ट को कॉल करें और उसको ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट देते हैं. सो दैट बेसिकली मीन्स यू आर सेंडिंग दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डिस्प्ले पोस्ट वेयर यू आर डूइंग दिस. क्योंकि इसको हमने रिपीटेडली यूज़ करना है, हम इसको स्टार्ट ही ऐसे कर रहे हैं. एंड अगेन, नॉट अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग दिस, बट for a very basic script this is fine. It will achieve our function because वो है ही 4 पोस्ट है और मैं 2 यूज़र बन के इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ. सो आई एम सेइंग कि एवरी टाइम दैट यू आर डिस्प्लेइंग पोस्ट, पहले तो आप अपने पोस्ट वाली डिव को खाली कर दें, उसका इनर HTML खाली कर दें. दिस इज़ द डिव दैट वी हैड मेड अर्लियर. एंड देन यू आर सेइंग कि जो आपके पास पोस्ट आए हैं यहाँ पर, go through all of the posts that you have, and we had them in the form of an array, जिसका मतलब है ये 4 दफ़ा चलेगा. we had them in the form of an array जिसके अंदर 4 elements थी, so ये 4 दफ़ा चलेगा. and it is saying कि एक div for every element that you find in the post, make a div. उस div को एक class की attribute ऐड करके दें called post, because we are going to want to be manipulating it later. तो हमें उसको एक्सेस करने का तरीका चाहिए. उसके इनर HTML के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको, जो आपने चीज़ें डालनी है उसके इनर HTML के अंदर, उसको आप इस पोस्ट से
को काइंड ऑफ उसके अंदर जाके उससे निकालें। सो पोस्ट फॉर ईच पोस्ट का मतलब है कि एवरी आइटरेशन में यहाँ पर एक एक पोस्ट का डेटा आता जाएगा। एंड यू आर सेइंग कि इसको ऐड इस तरह से करना है कि पहले पहले वाले का कंटेंट उठा के पहले, सो फॉर एवरी डिव यू आर सेटिंग अप 2 पैराग्राफ्स एंड अ बटन, एंड यू आर सेइंग पहले वाले पैराग्राफ के अंदर पोस्ट का कंटेंट डाल दें, दूसरे वाले के अंदर पुट इन लाइक्स की एक, बेसिकली ये चीज़ करने के लिए, ये जो लिखी हुई है इसको सेटअप करने के लिए यू आर गोइंग टू से कि लिखा हुआ लाइक्स आ जाए, और आपके पास ये एक हिडन वैल्यू, ये यूज़र को नहीं नज़र आ रही होगी लेकिन आपने इसके साथ अटैच कर दिया है इस पोस्ट की आईडी, एंड देन यू आर गोइंग टू प्रिंट आउट द नंबर ऑफ लाइक्स फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट, एंड देन यू हैव अ बटन जिसके अंदर आपने कह दिया कि ये लाइक बटन है और इसका आईडी जो है वो ये वाली, this is some ID that we want, but again your button is just displaying like this, it is not showing any information। वो information हम इस्तेमाल करेंगे internally to figure out कि अगर इस वाले बटन के ऊपर क्लिक हुआ है तो मैंने what is the action that I want to take। so ये वाली जो आपकी लूप है, this is going to run 4 times because we have 4 comments in our data, and it is going to keep appending the div for into द आउटर डिव के अंदर वो 4 डिव्स इंटरनल डाल देगा, तो वो सारा डिस्प्ले हो जाएगा। वन थिंग वी नीड टू डू इज वी नीड टू अटैच a function to each of the buttons that has been displayed, so that जब इसके ऊपर क्लिक हो तो मेरे पास लाइक की सारे के सारे काम की इनकोडिंग हो सके। तो आई एम गोइंग टू अगेन गो थ्रू दिस। अच्छा, ये करने के अगेन 2 3 4 तरीके हैं। वी हैव ट्राइड आउट अ कपल इन आवर अर्लियर क्लासेस। यहाँ पर दिस इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिड अर्लियर। वो बटन्स जो हैं वो सारे के सारे मैंने यूजिंग द क्लास दैट आई इंसर्टेड इन हेयर अर्लियर, इस क्लास को इस्तेमाल करते हुए मैंने सारे के सारे बटन्स जो हैं वो कैच किए हैं इनटू दिस ऑब्जेक्ट, एंड देन आई हैव सेड हर बटन के लिए एक क्लिक का इवेंट ऐड करें जिसके अंदर जिसका नाम जो है वो लाइक पोस्ट होगा। सो आई हैव बेसिकली ये वाला जो सारा कोड है, 2 फंक्शंस, दीज आर गोइंग टू सेट माई स्क्रीन अप सो दैट इट लुक्स लाइक दिस, एंड देन आई एम गोइंग टू सी कि मैंने लाइक करने के ऊपर एक्चुअली करना क्या है। सो लाइक करने के ऊपर we are saying that I have a post ID that I want to set, I want to kind of prepare because मेरे पास multiple posts हैं। I need to know कि कौन से वाला post जो है वो click हुआ है। I have an event object over here जो कि हमें receive होता है। We've seen this before as well कि जब भी आपके पास कोई event handler होता है तो आपके पास एक इवेंट का ऑब्जेक्ट आ रहा होता है दैट यू कैन चूज टू एक्सेस। वी वांट टू एक्सेस इट दिस टाइम बिकॉज वी वांट टू सी कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है। बहुत सारे बटन्स की क्लिक की एक्शन यहाँ पर ही लैंड होगी। तो वी सेड गिव लेट मी एक्सेस द इवेंट दैट द ब्राउजर इन एनी केस सेंड्स टू मी। मैं उसको एक्सेस कर रही हूँ इवेंट के नाम के एक ऑब्जेक्ट से, एंड आई एम सेइंग कि पोस्ट की आईडी जो है वो इवेंट डॉट टारगेट डॉट गेट एट्रीब्यूट डेटा आईडी वाला एट्रीब्यूट गेट करके मुझे कर दें। दिस इज गोइंग टू बी कमिंग इन बिकॉज ये ऊपर मैंने खुद डाला है यहाँ पर। सो आई गेट्स दिस वैल्यू एंड देन आई एम सेइंग ये वाली चीज़ को क्लिक हुआ है, सो गो टू माई PHP फाइल जो मेरे सर्वर साइड के ऊपर पड़ी हुई है, उसको ये वाली आईडी दो और उसको गेट मेथड के थ्रू एक्सेस करो। अगेन ये थोड़ा सा वेरिएशन इन द वे ऑफ यूजिंग दिस एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैड डन अर्लियर। इट इज अचीविंग द सेम थिंग, और मैं बेसिकली कह रही हूँ कि दिस इज द मेन थिंग दैट आई वांट टू डू। आई जस्ट वांट टू टेल दिस फाइल, अपडेट वाली फाइल, कि इस वाली आईडी नंबर के पोस्ट के ऊपर किसी ने लाइक को क्लिक किया। एंड व्हाट आई हैव डन इज, मैं ये भी कर सकती थी कि यहाँ पर अपनी लाइक डिस्प्ले कर देती, वो मैंने नहीं की। वो मैंने कंसोल के ऊपर डाल दिया ताकि मैं खुद अपनी चेकिंग कर सकूं, लेकिन इस वक्त मैंने यूज़र के लिए नहीं डिस्प्ले की। रीज़न यू आर सीइंग इट इमीडिएटली इज़ क्योंकि ये सर्वर के ऊपर जाएगा और उतने टाइम के अंदर ही यहाँ पर एक से एक चेक कॉल चली जाएगी टू चेक के सर्वर के ऊपर कोई अपडेट हुई हुई है या नहीं। नॉट वेरी एफिशिएंट, लेकिन इस वक्त मेरा पर्पस था कि कोड शुड बी काइंड ऑफ इजीली अंडरस्टैंडेबल। सो उस केस के अंदर मैंने यहाँ पर एक ही काम किया है कि जस्ट टेल द सर्वर के ये वाली पोस्ट के ऊपर एक लाइक आ गया। सो दिस बिकॉज वी आर ट्राइंग टू सी व्हाट दिस इज डूइंग, दिस इज अ गुड पॉइंट फॉर अस टू जंप हेयर टू सी कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है।
यहाँ पर you're basically saying कि मुझे एक मैसेज मिला है थ्रू दिस वैल्यू कि इस वाले पोस्ट के ऊपर किसी ने अपवोट एक क्लिक किया है. सो व्हाट आई वांट टू डू इज़ अगेन बहुत सुपर अनएफिशिएंट वे से ये कर रही हूँ मैं यहाँ पर कि मैं कह रही हूँ ये आईडी पकड़ो, चेक इफ यू हैव द आईडी, गेट्स दैट वैल्यू आउट, पूरी की पूरी जेसन की फाइल पढ़ लो, एंड देन अगर मेरे पास जिस पोस्ट की आईडी आई हुई है वो वाली पोस्ट मुझे फॉर इंस्टेंस मिल जाती है अपने पोस्ट की लिस्ट के अंदर, यहाँ पर मैं उसको ढूंढ रही हूँ. सो ट्राई टू फाइंड इफ आई हैव द पोस्ट विद द मैचिंग आईडी, और उसको मैं अपडेट कर दूंगी. और फिर अगेन बिकॉज आई एम जस्ट नॉट डूइंग समथिंग वेरी एफिशिएंट, पूरी की पूरी टेक्स्ट फाइल मैंने पढ़ी है ये वाली, इट्स वेरी स्मॉल सो नॉट एन इशू. चेक किया है कि कुछ अपडेट हुआ है, अगर अपडेट हुआ है तो मैंने उस कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट के अंदर अपडेट कर दिया जो मैंने फाइल के अंदर से पढ़ा था. एंड बिकॉज आई हैड सेट सम फ्लैग ओवर हेयर विद सेट के अगर किसी जगह के ऊपर अपडेट हुई हुई है यहाँ पर, तो अगर मुझे पता चल गया कि वो फाइल वाकई चेंज होने वाली है बिकॉज कुछ चेंज अपडेट आई थी, तो आई एम जस्ट गोइंग टू डंप द एंटायर ऑब्जेक्ट एंड री राइट दिस एंटायर फाइल ओवर हेयर. So again वो 4 एंट्रीज हैं, so not a big deal in terms of efficiency, but large scale applications के अंदर this is not a great design. नीचे सारी की सारी एरर चेकिंग हो रही है, सारे के सारे else's जो हैं वो बेसिकली आपकी एरर चेकिंग कर रहे हैं, बट दिस इज फाइल इज जस्ट डूइंग दिस. यहाँ से ये मैसेज रिसीव करती है कि एक पर्टिकुलर पोस्ट है जिसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हो उसकी आईडी नंबर से, और आप कह रहे हो कि यहाँ पर एक लाइक्स के अंदर इंक्रीमेंट डालनी है. रीड द एंटायर फाइल, फाइंड द पोस्ट जिसके ऊपर अपडेट करनी है, उसके लाइक्स अपडेट करो, और अगर अपडेशन हुई है तो इफ़ यू हैव फाउंड द फाइल जिसके अंदर वो वाली आईडी थी और उसके पोस्ट अपडेट हो गए हैं तो वो पूरी की पूरी फाइल रीराइट करते हैं. सो वी हैव डन द फर्स्ट अपडेट डॉट पीएचपी फाइल. उसके बाद मैं कह रही हूँ सो ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर. एवरी टाइम somebody clicks, दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट एट द स्टार्ट. अभी के लिए फेच पोस्ट जो मैं राइट एट द स्टार्ट इस्तेमाल करती हूँ, फेच पोस्ट एक दफ़ा डिस्प्ले पोस्ट को इस्तेमाल करता है. सेकेंड थिंग आई एम डूइंग इज़ नीचे मैं अपने कंट्रोल एरिया में जा रही हूँ. सो एक तो हमने फेच पोस्ट कर दिया था, फिर हमने कहा था कि फेच पोस्ट के बाद एवरी 500 मिली सेकेंड्स, सो एवरी हाफ सेकेंड चेक लाइक्स को कॉल करते हैं, जिसका मतलब है आई वांट टू सेट अप अ मैकेनिज्म वेयर एवरी हाफ मिनट आई एम गोइंग टू आस्क द सर्वर कि आपके पास कोई नई अपवोट्स आई हैं या नहीं आई. सो उसके लिए वी हैव दिस फंक्शन वेयर वी आर सेइंग कि अगेन एक मेरी और पीएचपी की स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, उसको एक्सेस करें और वो जो भी डेटा देती है उसको उठा के इसके अंदर डाल दें. So let's first see what this is going to send back to us. Let me just close the meeting and come back. I'll send a new link in a second. Okay.